So I am back with my new lecture. The topic of today is presidential system versus parliamentary system. So as you know that the India has the parliamentary form of government here, while in US we have the presidential form. So it is always a point of contention or topic of discussion or topic of debate every time that whether the parliamentary system is better or the presidential system is better. Which system is better? So today we'll discuss it in detail, the difference between presidential system and as well as vis-a-vis the parliamentary system. So we have made it in a series of 3 lectures. The first lecture is the presidential system versus parliamentary system. In the next lecture we'll study the advantages and disadvantages of both the systems. And in the third lecture we'll study whether the parliamentary system suits India or the presidential system suits India. So which system suits India more? And if now, because the parliamentary system is currently active in India, so should India switch to presidential system or not? So we'll study in the perspective of India whether the parliamentary system is more suitable or presidential system is more suitable. That is very important as far as your essay exam or your GK exam point of view is concerned. So without any further ado, I'll start the lecture. So the presidential versus parliamentary system. So the criteria of difference, as you have seen, is written in the left portion and the first column, and the presidential and parliamentary system features based on the criteria written. So starting with the form of government. As you know, the presidential system में क्या होता है? Presidential system, president is the head of the state in the presidential system, head of the state as well as the head of the government. While in parliamentary system, president is the head of the state, while prime minister is the head of the government. So what is the form of government? The form of government is president remain in power even if he does not enjoy confidence in legislature, because executive is independent of legislature in presidential system. So as you know, जैसे US में आप जानते हैं the current president Joe Biden. So जो बाइडन जो हैं, सो वो पावर में जरूर है, प्रेसिडेंट जरूर हैं, बट जो कांग्रेस है एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. सो इट इज़ नॉट, सो ये ऐसा नहीं मतलब ये नहीं होगा हमेशा कि जो पार्टी जिससे प्रेसिडेंट बिलोंग करते हैं वही मेजोरिटी में इन दी बोथ दी हाउसेज. सो एनी पार्टी कैन बी इन मेजोरिटी इन एनी ऑफ दी हाउस. तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट को जो फुल 4 ईयर टर्म्स हैं यूएस में वो मिलती है, बट इंडिया में क्या है कि प्राइम मिनिस्टर हुई दी हेड ऑफ द गवर्नमेंट इंजॉयज रिमेन इन गवर्नमेंट टिल इट इंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा. एज यू नो कि जब तक लोकसभा का कॉन्फिडेंस है उनमें, यानी कि वो मेजोरिटी में 50% से ऊपर उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, तब तक वो रहेंगे गवर्नमेंट में. ठीक है. सो दिस इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट that the Prime Minister remains the power till it enjoys the confidence of the legislature, that is the Lok Sabha in case of India. Now head of the state, as you have already told you that the President is the head of the state and the head of the government. While here in parliamentary system, in India, President is just the nominal head. So he is the head of the state and he is the just nominal head. The real head is the head of the government, who is the Prime Minister. Election, प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट होता है, बट हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता, आप जानते हैं. इलेक्टेड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. हम एमपी चुनते हैं और एमपी फिर अपना प्राइम मिनिस्टर जो हेड ऑफ दी ये है लेजिस्लेचर वो चुनते हैं, हु इज द प्राइम मिनिस्टर. सो ही इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड. सिमिलरली प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड. प्रेसिडेंट भी आप जानते हैं, एमपीज एंड एमएलएज चुनते हैं of both the houses as well as of the state legislatures. So election, president is directly elected by the people, while in parliamentary, prime minister as well as president is indirectly elected. Ministers are elected by president as per his or her own wish. उसमें भी actually elected by the president, जो president elect करते हैं ministers को, but on the wish of the prime minister. But यहाँ पे president अपनी wish के हिसाब से elect करते हैं मिनिस्टर्स को, अपॉइंट करते हैं. मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड मिनिस्टर्स आर नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर. ठीक है. सो प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर नहीं होते हैं इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, वाइल पीएम एंड मिनिस्टर्स मैंडेटरी टू बी मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस. कोई भी हाउस के मेंबर्स होना जरूरी है मिनिस्टर्स और पीएम को.
हाउवर प्रेसिडेंट नॉट अ मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर, लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट भी कोई भी लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होते, बट इन दी प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्रेसिडेंट एंड मिनिस्टर्स नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ दी हाउस। सेपरेशन ऑफ पावर्स, स्ट्रिक्ट सेपरेशन है पावर्स का इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंट कंप्लीट करते हैं अपनी फुल टर्म, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स है। लेजिस्लेचर इज इंडिपेंडेंट, एग्जीक्यूटिव इज इंडिपेंडेंट, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। वाइल इन इंडिया 3 organs are independent of each other, मतलब in the sense that judiciary can review the laws passed by the and the orders passed by the government and laws passed by the parliament, legislature, but the executive is not independent of the legislature. So executive remains in office till it enjoys the confidence of the parliament, and the laws which are passed by the legislature are implemented by the government. ठीक है। So executive a member of legislature, legislature can vote no confidence to remove the executive. So purely independent नहीं है यहाँ पे, प्रेसिडेंट केवल impeachment के द्वारा ही हटाया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। और impeachment is a constitutional process, while this no confidence is a not a constitutional process, it's a legal process. Federalism, power shared between central and state governments. Obviously in presidential system US में आप जानते हैं हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, पावर शेयर्ड है सेंटर और स्टेट में, एंड फेडरल स्कीम है, प्योर फेडरल स्कीम है। स्टेट की अपनी ऑटोनोमस पावर्स हैं, सेंटर की अपनी है। बट पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, क्वासी फेडरल है, मतलब फेडरेशन है बट यूनिटरी है हमारे यहाँ, बहुत मोर पावर्स टू सेंटर है ना। ये आप जानते हैं, मैंने इसके ऊपर पहले भी लेक्चर बनाया है कि हमारा यूनिटरी इन स्पिरिट है, फेडरल इन करेक्टर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। सो यूनिटरी कैसे है, यूनिटरी इस तरीके से है कि इमरजेंसी के केस में ऑब्वियसली सेंटर को पावर्स चली जाती हैं, और सेंटर गवर्नर अपॉइंट करता है स्टेट्स में। सो ये भी एक यूनिटरी एक करेक्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे सिस्टम का। उसके अलावा आप जानते हैं कि बहुत सारे केसेस में सेंटर जो है उसको ओवरराइडिंग पावर दी गई है स्टेट के ऊपर। बहुत सारे बिल्स जो हैं स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर कैन रिजर्व फॉर दी कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सो देयर आर मैनी इंस्टेंसेस बाय विच हमारे यहाँ फेडरेशन को पावर्स दी गई हैं, बट यूनिटरी को ज़्यादा पावर दी गई है, यानी कि यूनियन को ज़्यादा पावर दी गई है। एक्सपर्ट गवर्नमेंट, द कैबिनेट मेंबर्स आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड्स। आपको मैं बता दूं कि वहाँ पे जो है ना, जो प्रेसिडेंट एंड मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होते, तो मेंबर्स जो होते हैं इन दी प्रेसिडेंशियल सिस्टम वो एक्सपर्ट होते हैं अपनी फील्ड्स में, क्योंकि वो मतलब लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होते। तो प्रेसिडेंट अपनी जो टीम बनाता है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को ले, वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को लेके कोई किसी को भी प्रोफेशनल को अपनी टीम में शामिल कर सकता है। वाइल पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, कैबिनेट मेंबर्स जो हैं वो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर होना ज़रूरी है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक्सपर्ट्स जो होते हैं उन्हें वो पोर्टफोलियो मिले। मतलब आप जैसे जानते हैं हमारे देश में रेल मंत्री उसको बना दिया जाता है जिससे रेल का कोई अनुभव ही नहीं होता। ऑल्सो तो इन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं दे आर मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, सो दे मे नॉट बी एक्सपर्ट। जैसे रेल मंत्री यहाँ बना दिए जाते हैं जिन्हें रेल का अनुभव नहीं है, या फिर मानव संसाधन मंत्रालय मिल जाता है MHRD जिन्होंने पढ़ाई भी ढंग से नहीं की हुई हो। ऑब्वियसली यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि आपको केवल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर्स को या आप केवल मिनिस्टर्स बना सकते हो, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, बट आप एक्सपर्ट को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं, उनको वो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो दे सकते हो। तो ये यहाँ पे एडवांटेज है जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द पार्लियामेंट्री सिस्टम। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जानते हैं, प्रेसिडेंशियल में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिनिस्टर की। ऑब्वियसली जो एक्सपर्ट होते हैं अगर वो काम नहीं कर रहे तो उन्हें बर्खास्त कर देती है, प्रेसिडेंट बर्खास्त कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। बट पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप जानते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिनेट की, मिनिस्टर्स की। इट इज़ दी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जो भी एडवाइस जाती है टू द प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट कलेक्टिवली जाती है बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो इट इज़ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसलिए कोई भी मिनिस्टर एस्केप कर सकता है अपनी इन ड्यूटी को, या फिर कोई गलत काम करता है तो उसको एस्केप कर सकता है इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। सो दिस आल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज। स्टेबिलिटी, ऑब्वियसली टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज फिक्स्ड, एज यू नो दैट द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट फिक्स्ड इन प्रेसिडेंशियल 4 साल है 5 साल है, तो वो कवर पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें प्राइम मिनिस्टर की फिक्स नहीं है, मतलब जो गवर्नमेंट की है, बिकॉज वो ही रिमेन्स इन ऑफिस टिल ही एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर और लोकसभा। देन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस है, अनक्वालिफाइड लेजिस्लेचर्स। ऑब्वियसली
प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लेजिस्लेचर्स होते हैं जो अपने एक्सपर्ट नहीं होते अपनी फील्ड में. मिनिस्टर डो नॉट बिलोंग टू दी रूलिंग पार्टी. वन मिनिस्टर्स पार्लियामेंट्री में एक्सपर्ट नहीं होते, प्रेसिडेंशियल में होते हैं. मिनिस्टर्स रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं. इसमें पार्टी पॉलिटिक्स, प्रेसिडेंट एंड मिनिस्टर्स कैन टेक डिसीजंस विदाउट कंसीडरिंग द पार्टी एफिलिएशन. सो इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स हैं डिसीजन ले सकते हैं विदाउट एनी पार्टी, मतलब एम्फेसिस ऑन पार्टी, थिंकिंग अबाउट द पार्टी, व्हाट पार्टी विल थिंक अबाउट देम. तो पार्टी एफिलिएशन से हट के वो डिसीजन ले सकते हैं इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल. वाइल पार्लियामेंट्री में आप जानते हैं कि पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते हैं. मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर पार्टी को खुश करने के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, पार्टी के अगेंस्ट नहीं जाते. तो ये क्यों नहीं होता ये हम वैसे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ. क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर जो होते हैं ऑब्वियसली पार्टी इनको अपॉइंट करती है. क्योंकि अगर ये पार्टी की बात नहीं मानेंगे तो प्राइम मिनिस्टर को हटाया जा सकता है, क्योंकि इनकी मेजोरिटी तो तब तक ही होती है जब तक ये कॉन्फिडेंस इंजॉय कर रहे हैं. तो अगर लेजिस्लेचर्स ने इनके विरुद्ध वोट दे दिया नो कॉन्फिडेंस में तो गवर्नमेंट गिर जाएगी. बट वहाँ पे तो ऐसी कोई गवर्नमेंट गिरने का चांस ही नहीं है. सो दे कैन टेक डिसीजन विदाउट कंसिडरिंग द पार्टी एफिलिएशंस. बट एक डिसएडवांटेज है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, इट कैन बिकम ऑटोक्रेटिक बिकॉज प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज अनफिटेड पावर्स. बहुत सारी पावर्स होती है प्रेसिडेंट के पास, तो ही कैन बिकम ऑटोक्रेटिक. व्हाइल इन पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जीक्यूटिव इज पावरफुल but cannot become autocrat as he can be removed any time by legislature. So this is simple as I already explained you. So what is the check and balance? But there is a check and balance in presidential system that the executive and legislature are independent. So both exercise effective check and balance on each other. ठीक है, एक ने डिसीजन लिया तो दूसरा उसको काट सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो कांग्रेस बिल पास करेगी तो प्रेसिडेंट उसको वीटो कर सकता है, या कांग्रेस कोई ऐसा बिल पास करके दे सकती है जो प्रेसिडेंट पसंद ना करे. जरूरी है ना रूलिंग पार्टी के हिसाब से वो बिल पास करके दे लो, कानून बने. तो ऑब्वियसली चेक एंड बैलेंस अच्छा है इसमें. बट चेक एंड बैलेंस पार्लियामेंट्री में नहीं है, क्योंकि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव क्लोजली इंटर रिलेटेड है. तो कानून वही पास होगा जो कि गवर्नमेंट चाहेगी. तो गवर्नमेंट अगर गड़बड़ करेगी तो गड़बड़ कानून पास हो सकता है. So whatever bill put up by executive passed by legislature as executive has majority. So it has less check and balance as compared to presidential system. So this is the major difference between the presidential and the parliamentary system. So this is how the presidential system as well as parliamentary system differ. Now in the next lecture we will study about the advantages and disadvantages of both these systems. So till then wait for my next lecture and kindly subscribe to my lecture and don't forget to press the notification button and to press the bell icon. Thank you very much.